year कहते हैं. In India also we are following financial year. So majority sum जब आते हैं आपको तो financial year से आते हैं, ठीक है ना. तो financial Yes, year से sir. sum करना जरूरी बन जाएगा. चलो तो फिर फटाफट हम sum लिखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सम हम लिख रहे हैं, ठीक है. चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं. म्यूट योरसेल्फ. मुझे Okay, मेरी sir. तो बात है बस. A limited purchase one machinery of rupees 2 lakh as on 1/4/2001. ठीक है. It purchased another machine of rupees 1 lakh as on 1/10/2002. And another machine of rupees 3 lakh as on 1/1/2003. The first machinery was sold for rupees 80,000 as on 1/10/2003. You are required to prepare machinery account starting from 1/4/2001 to 31st March 2004. Rate of debris is 10% and straight line method. ठीक है. मशीन अकाउंट बना देते हैं अभी. Now we'll prepare a machine account. So now we'll start with the machine account. One minute. चलो. So ये बना machine account. ये लेजर बना दे. This is for date. Date. Then we have particulars. Rupees. Date. Then we have particulars and rupees. We'll put JF here. It's a formality. JF you have to put. ठीक है जी. स्टार्ट करें. तो पहला मशीन मैंने लिया है 1/4/2001. It's the beginning of the year now, financial year. So 1/4/2001 to bank. And the value of the first machine is, I think, 2 lakh. Right. So I'm doing working here. I have one machine and the value of which is 2 lakh. And the normal rate of debris is 10%. So if I use this machine for a full year, my normal rate of depreciation is 20,000.
राइट। अब फिर से ईयर एंड हो जाएगा आपका, देखो ईयर एंड कर रहा हूं मैं, ईयर एंड हो जाएगा 2002 को, बी केयरफुल, इट्स अ फाइनेंशियल ईयर, सो ईयर एंड ऑन 31st March 2002। ओमकार, कैन यू रिपीट मशीन कब कब लिया है, डेट थोड़ी रिपीट करोगे क्या? Yes, sir. Second machine was bought on 1/10/2002. 1/10/2002, ये है 31st March 2002, मतलब उसके बाद खरीदा है, ठीक है ना? Hmm. तो इस साल में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन I'm using 20,000. Why? Because I've used the machine for the full year, and that is why मैं 20,000 ले रहा हूँ। By balance CD, the total is 2 lakh. This is 2 lakh. So the balance is 1,80,000. ठीक है जी? Yes, sir. Yes, sir. Now the new year, 1/4/2002. Be careful, it's financial year. So 31st March 2002 के बाद आएगा 1/4/2002. To balance BD, it is 1,80,000. Now I am buying one more machinery. Mute yourself, Alok. Yes, sir. On 1/10/2002, I am buying one more machinery to bank, and the value of which is 1 lakh, I think. Yes, it's 1 lakh. So now I'm adding my working now. I am having now two machines. The value of the second machine is 1 lakh, and the normal rate depre is 10,000 if I use it for the full year. And another machinery I'm buying on 1/1/2003. So why 1/1/2003 को यहाँ लिया आपने? क्योंकि देखो ईयर एंड में पहले करवा रहा हूँ, 2003 31st March। फाइनेंशियल ईयर से सम करने में ऑलवेज प्रॉब्लम होगा ही होगा आपको, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2002 को, जबकि एंड होता है 31st March 2003। और व्हेन यू आर बाइंग योर मशीनरी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2003, आप ही देख लो, मार्च 2003 एंड जनवरी, जनवरी पहले आ जाता है, तो ये मशीन भी आपने इस साल में ली है, ये गड़बड़ी हो जाएगी, शुरुआत में होगी, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करोगे तब। सो 50,000 का मशीन भी इसी साल में आ गया। नाउ आई एम हैविंग Sir, थर्ड 3 मशीन lakh. आल्सो। अच्छा 3 लाख का है, आई एम सॉरी, इट्स 3 लाख, ओके। So now I am having a third machine. The value of is 3 lakh, and the normal depre is 30,000 if I use it for full year. So now I am having three machine with me. Now year end हो जाएगा 31st 3 2003 को, तो डेप्री निकाल देते हैं फिर ईयर एंड पर बाय डेप्री, डेप्री on first machine. So डेप्री on first machine is 20,000 because I have used it for full year. Depre on second machine. The depre of second machine is normally 10,000, but I'm using it for 6 months. Calculate October to March, 6 month होता है, कैलकुलेट करके देखो एक बार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ, फुल ईयर का 10,000, 6 months का 5,000. So initially you will definitely face some trouble. कैलेंडर ईयर से फाइनेंशियल ईयर पे जाते, एंड 1/1 जनवरी टू मार्च, ओनली 3 months था, पूरे साल का डेप्री 30,000, 6 मंथ का उसका आधा 15,000, और 3 महीने का उसका आधा 7,500. So this is the depre of third machine. Right? So फिर टोटल कर देते हैं. The total is 3, 4, 5, 5,80,000. Total here is also 5,80,000.
And by balance CD, how to find out balance CD now? 25 and 7, 32,500 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 32,500 को अगर माइनस करते हो सर आप तो ये आएगा 547,500. सही है? This is the balance we have. This is the closing balance. वाह, बढ़े आगे? Yes, sir. हाँ नहीं सर. सर 1 मिनट में बाकी. ठीक है, कर लो. Now, next year and last year, be careful, it is 1/4/2003. ठीक है ना? To balance BD, it is 547,500. ना इस साल में एक बात हो रही है कि पहला मशीन है वो हम बेच रहे हैं. So I have to do working now. ठीक है ना? पहला मशीन लिया था 1/4/2001 को, वैल्यू थी 2 लाख. फिर अगर 20,000 पहले साल का डेप्री गिन ले तो वैल्यू इज 180. दिस इज द वैल्यू एज ऑन 1/4/2002 और 20,000 माइनस कर लेते हैं. So 160 is the value as on 1/4/2003. अब मुझे पहुंचना है 110 तक सर. 110/2003. दैट मीन्स और 6 मंथ चाहिए. सही है कि गलत? कैलकुलेट कर लो. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंडिंग तक 6 महीने होते हैं सर. 10,000 होगा. पूरे साल का 20,000 है तो 6 मंथ का 10,000 डेप्री होएगा. 150 इज द वैल्यू ऑफ दैट मशीन ऑन 110/2003 और मैंने इसको 80,000 में बेच दिया सर. दैट मीन्स आई एम इनकरिंग अ लॉस ऑफ 70,000 सर. दिस इज द लॉस. सही है ना? ना वैसे तो डेप्रिसिएशन Yes, की sir. एंट्री ईयर एंड पर होती है, लेकिन जिस दिन आप इसको बेच दो उस दिन डेप्री एक्स्ट्रा डेप्री आप पास करी दो. देखो 110 को मैं क्या कर रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन. दिस इज द एक्स्ट्रा डेप्री फॉर 6 months and this is 10,000. By bank and this is 80,000. एंड बाकी का मशीन कहाँ गया सर? बाय लॉस ऑन सेल्स. ये लॉस ऑन सेल्स हो गया. अमाउंट इज 70,000. हो गया. ठीक है ना? नाउ मैं वर्किंग में आके इसको तो हटा ही दूंगा. मीठा सा काट लो इसको. अब ये मशीन नहीं है आपके पास. अब जब ईयर एंड होगा 2004 31 मार्च, तब आप लिखोगे बाय डेप्री on second machine. So it's 10,000 because you've used it for full year. Depre on third machine is 30,000 because you're using it for full year. And now total कर दो और sum तो लगभग हो गया. 547,500 is a total. 547,500 is a total. और उसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो इसका टोटल अगर करोगे तो 160 आएगा. That is 170 and 2 lakh. इस साइड का टोटल 2 लाख हो रहा है तो बहुत आसान है सर. बैलेंस 3,47,500 आएगा. दिस इज बाय बैलेंस CD. दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस एंड द सम इज ओवर. सर ये कितने मार्क का सम आएगा एग्जाम में? व्हाई?
It depends there. If I ask to prepare account for 3 years, I think it's 6 mark sum, then maybe it's 8 mark sum, right? यहाँ marks है. Depreciation जैसे गिना ये, Sir, that's contained half marks here. ये बहुत सारा calculation है. 3 depreciation है, so it's 1 mark. For balance you have 1 mark, right? So it depends कि number of entries कितनी है. जितनी entries ज़्यादा and जितना calculation ज़्यादा, उतने marks ज़्यादा. Yes dear. सर बट ये सब मार्क्स गेन करने के लिए अच्छे हैं, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ता है पर फिर भी जल्दी हो जाते हैं. ये है मतलब मार्क्स BRS है. इजीली गेन हो जाता है. Yeah, but compared to other subjects in accounts, you'll get marks easily अगर आपका command आया जाए तो. लिखना कितना सारा पड़ेगा? क्यों लिखना कितना पड़ेगा? जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं. मशीन खरीद रहे हैं, डेप्रिसिएट हो रहा है. मशीन खरीद रही है, डेप्रिसिएट हो रहा है. हो लास्ट गया में सर ये सब. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. चलो देन नेक्स्ट सम करें फटाफट. यस सर. आलोक. मशीन ABC Limited purchased one machinery of rupees 2 lakh on 1/1/2001. सर आपका कैमरा ब्लर हो गया. अरे यार. A Limited purchased one machinery of rupees 2 lakh on 1/1/2001. It purchased another machine of rupees 1 lakh as on 1/10/2002. On 1/10/2003, one half of first machinery was sold for rupees 40,000. Prepare machinery account. Starting from here 1/4/2000 to 31st March 2004. Rate of depre 10%. Straight line method. सर कितना कितना परसेंट रेट ऑफ डेप्री? 10% per annum. And straight line method. हुआ? यस सर. चलो we prepare machinery account now. वो तो है. मशीन अकाउंट बना देते हैं. ठीक है जी. यस सर. क्या हुआ? वो निकल गया था. क्वेश्चन नोट नहीं किया. ठीक है. चलो देन मशीनरी अकाउंट. यस सर. सर क्वेश्चन बोलो ना फिर से थोड़ा. वेट मैं करते जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ कर लो. ओके सर. Now the first machinery was purchased on
1/1/2001. Be careful now. To bank. The value of this machine, please mute yourself. The value of this machine is 2 lakh. So I'm just doing working that I'm having one machine, the value of is which is 2 lakh, and the normal rate of depreciation is 10%. And if I use it for the full year, the depreciation will be 20,000. If I use it for full year, then only. Then be careful now. You're using it only for 3 months. Why? Because the machinery you are purchasing is on 1st January, and your year will end on 31st March. So be careful. You have to calculate DEPRI for only 3 months. Maximum students ये नहीं करते, इसको उनको ध्यान ही नहीं रहता, वो जनवरी टू दिसंबर में पड़े रहते हैं. समझो जनवरी में आपने लिया और मार्च में तो ईयर एंड हो गया, तो पूरे साल का 20,000, तो आधे साल का 10,000 और 3 महीने का 5,000 डेप्री सेट पड़ेगा. ओनली 5,000 डेप्री आ जाएगा. आई एम पुटिंग 5,000 हियर ओनली, एंड यहाँ लिख रहा हूँ बाय डेप्रिसिएशन. आई थिंक समझ में आया. इसमें डेज और डेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. अगर आपने नहीं ध्यान रखा तो ये नहीं हाथ में आएगा. बाय बैलेंस सीडी ये हो गया. एंड नाउ बी केयरफुल. It is 1/4/2001 only. Why? Because the next day of 31st March 2001 is 1/4/2001. आदत क्या है आप लोगों को? इधर 2002 लिख देने की. लेकिन बी केयरफुल, हम फाइनेंशियल ईयर से कर रहे हैं सम को. टू बैलेंस BD is 1,95,000. The second machine the company is buying in the month of June 2002. And be careful, your year ends on 31st March 2002. सर जी तो इस साल में तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं खरीदा है आपने इस साल में, तो फिर सही है ना. तो देखो फिर से डेप्री गिन रहा हूं. बाय डेप्रिसिएशन it's 20,000 now because I've used it for the full year. So 20,000, and by balance CD, the total is 195. So it is 175. This is your closing balance. Be careful. आदत है आपको कि इधर जून लिख दे, बट याद रखो ये जून 2001 आएगा. हमने तो खरीदा है जून 2002 में, तो वेट करना पड़ेगा. फिर से नया ईयर आ जाएगा 1/4/2002 now. To balance BD, and now it is correct. It's 1,75,000. Now you can buy new machine on 1/7/2002. Alok, can you repeat the date, please? Second machinery was purchased on 1/10/2003 half. No. The second machine was purchased on which date? अच्छा, date 1/10/2002. 1/10/2002. Okay. 2002. 1/10/2002. And the amount is how much to 1 lakh. bank? 1 1 lakh. So see, I'm buying one more machine. Thank you, dear. You can mute yourself now. 1 lakh, and the normal depreciation is 10%. So if I use the machine for the full year, the depreciation will be 10,000. If I use it for full year, then. Now, the year comes to an end on 31st March 2003. सही है. और मशीन कब बेचा है, कौन से डेट को? फर्स्ट. आलोक, मशीन कब बेचा है, डेट कौन सी है मशीन बेचने की? कौन सी डेट को बेच दिया है मशीन? फर्स्ट मशीनरी, 1/2 of first machinery was sold. हाँ तो On which date? 1/10/2003. 1/10/2003. 1/10/2003. So 31st 3/2003 तक तो कुछ नहीं बेचा है.
So buy Depri on 1 now, normal Depri, I'll pass. It's 20,000, straight line method. And Depri on 2, you can mute yourself now. 10,000 is for the full year, but for 6 months, because I'm using it for 6 months only, right? October to March, so it's 5,000. Now total कर देता हूँ फिर से. The total is 2,75,000. Here also 275, and इसमें से 25 minus करूँगा, then 250 is the balance which is left. By balance CD, this is also on 31st March 2002. Oh, 2003. I'm sorry. ठीक है. Now the next year will be 1/4/2003. To balance BD, and the amount is 2,50,000. अब मुझे वर्किंग करना पड़ेगा. ठीक है जी. ये पहला मशीन का 1/2, तो वर्किंग भी 1/2 का ही करूंगा. 2 लाख का 1/2 कितना होएगा? 1 लाख. So see, sir, 1/1/2001 को मैंने जो मशीन 1 लाख का खरीदा था. So why you are not using 2 lakh? Because इसका आधा ही बेचा है. तो 2 लाख का आधा 1 लाख होगा, तो पूरा वर्किंग भी 1 लाख से चलेगा. That's 2,500. Why 2,500, sir? I am passing Depri for 3 months only. ठीक है. The 3 months is full year का 10,000, half year का 5,000, and 3 months का 2,500. So it's 97,500. This is the value as on 1/4/2001. Be careful. जनवरी से 3 महीने ऐड किए तो अप्रैल 2001 पे पहुंचोगे. Now 10,000 पूरे साल का डेप्री. सर 10,000 कैसे? 1 लाख का पूरे साल का डेप्री 10% के हिसाब से 10,000 होगा. So it's 87,500. Now this is the value as on 1/4/2002. एक साल बढ़ाते जा रहा हूं. 10,000. That is 77,500. This is the value as on 1/4/2003. मुझे पहुंचना है अक्टूबर तक. मैं पहुंचा हूं अप्रैल 2003 तक. मुझे और 6 मंथ का डेप्री चाहिए सर. That is 5,000. पूरे साल का 10, आधे साल का 5, 72,500. This is the value, sir, as on 1/10/2003. ये वैल्यू है सर. और मैंने इसको कितने में बेच दिया है? हेलो, कितने में बेचा है? 40,000 में. Yes, sir. 40. Yes, sir. 40,000. 10%. The loss is 32,500. ठीक है जी. इधर एंट्री कर ले. वैसे तो डेप्री की एंट्री ईयर एंड पर होती है, लेकिन जिस दिन मशीन को बेचो उस दिन उसका सब कुछ खत्म करो. देखो, बाय एक्स्ट्रा डेप्री, ये 6 महीने का एक्स्ट्रा डेप्री है, उसको अभी से कर लेते हैं 5,000. बाय बैंक it's 40,000, and buy loss on sales it is 32,500. अब करना कुछ नहीं है, ये वर्किंग है ना, उसमें ये मैं काट दूंगा. मैं इसको 10,000 कर दूंगा. बी केयरफुल नाउ, बिकॉज अब मेरे पास 1 लाख का मशीन ही है, 2 लाख का नहीं है. मैंने आधा बेच दिया. मतलब अब जब ईयर एंड पर मैं 31 मार्च 2004 को जब एंट्री पास करूंगा बाय डेप्री ऑन 1, तो मैं 20 नहीं बोलने वाला. मैं डेप्री ऑन 1 में बोलने वाला हूं 10,000, बिकॉज आधा मशीन तो मैंने बेच दिया है और उसका डेप्री वेप्री भी सेटल हो गया है. डेप्री ऑन 2 जो नॉर्मल था 10,000, वो 10,000 रहेगा. बस हो गया. अब तो मुझे बैलेंस फाइंड आउट करना है. 2,50,000.
Here is also 2,50,000 एंड 250 में से देखो इस तरफ का टोटल अगर करेंगे तो 77,500 होगा, 97,500 हो रहा है, ठीक है ना। तो बैलेंस होएगा मेरे हिसाब से 1,52,500। आप निकाल के देख लो, वही बैलेंस आना चाहिए, बाय बैलेंस सीडी वही आएगा। बोलो हुआ? कोई क्वेश्चन है?